Hello students, welcome to online classes of CATG. In the last lecture, we started with the first chapter of the book Vistas, named The Third Level. Right behind on the board, you can find the name of the chapter, The Third Level by Jack Finney. In the last lecture, that was lecture number 1, today we are doing lecture number 2. In lecture number 1, we had a very elaborate discussion about understanding what the story is about how we can go deep into the psychological understanding of human behavior, how modern life causes stress and anxiety for people, what problem the protagonist of the story, Charlie, faces, how he sees a third level at the station Grand Central in USA, how he lives in New York City, Manhattan, and rather but desires secretly to escape to his childhood place named Galesburg, Illinois. In the previous lecture, we did all these elaborate discussion and did a very good introduction to the chapter. Today, we are going to start with the line-by-line reading of the story. For your help, the NCERT, the PDF of the NCERT text has been attached in the description box of the previous lecture, lecture number 1. You can find the PDF there in the description box on the YouTube lecture. So check that there. I'm assuming that you have the text. So we are starting with the line-by-line reading, children. Here we start. The Third Level by Jack Finney. The line-by-line reading starts here. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central. Yes, I have taken the obvious step. Before going ahead, I must remind you about the Grand Central Station that we discussed about in the last lecture. Grand Central Station, the iconic railway station in USA, in New York City, where there are only 2 levels, level 1 and level 2. But our protagonist, Charlie, believes that he had been to the third level of Grand Central. यही बात यहाँ पे चल रही है बच्चों. He says in the beginning, the narrator of the story is Charlie himself. So Charlie says, New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads. That was a railroad. Remember, these 3 names, New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads, was the name of a very popular railroad in USA that operated in the mid part of 20th century. वहाँ के presidents भी यही कहेंगे, कसम खाकर यही कहेंगे that there are only 2 levels at Grand Central Station. But I say there are 3 levels at Grand Central Station. अब अगर सारे लोग ये कहते हैं, अगर स्टेशन के प्रेसिडेंट्स ये कहते हैं कि there are 2 levels and I say there are 3 levels, इस बात का मतलब क्या है? अरे इस बात का मतलब तो यही हुआ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, because everybody says there are 2 levels, I say there are 3 levels. Then what should I do? The obvious step is I must go to a psychiatrist. So Charlie says, yes, I have taken the obvious step. हाँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं पागल हूं, तो मैंने वो कदम उठा लिया है. I went to a psychiatrist. मेरा mental balance शायद कम होगा, so I went to a psychiatrist. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I talked to many people. I also talked to a psychiatrist friend of mine. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. It was a waking dream wish fulfillment. So till now, we discussed about this idea that at Grand Central Station, there is level 1, there is level 2, and Charlie with the dotted lines, I have again marked it with dotted lines. Charlie believes this.
Charlie believes that there is level 3. So what he does, he goes to a psychiatrist friend and tells him that I think there is a level 3 at Grand Central which nobody else believes. So the psychiatrist tells him that actually Charlie suffers from a mental disorder called waking dream wish fulfillment. Children, in the previous lecture, we had a detailed discussion on waking dream wish fulfillment. So I'm not repeating things again. So he says it was, इसके लिए आपको अपना previous lecture को ध्यान से एक बार जरूर देखना है. So the doctor said he was suffering from waking dream wish fulfillment. He said, I was unhappy. He said, I was unhappy, and that made my wife kind of mad. My wife got mad, thinking, I am unhappy, I'm stressed, and I'm suffering from a mental disorder. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just wanted to escape. The doctor said that I am suffering from waking dream wish fulfillment because I'm not able to face what? I'm not able to face let me write it here, children. The modern world is full of what? Is full of insecurity, is full of war, is full of fear, is full of worry, and the rest of it. The modern world is filled with insecurity, war, fear, worry. आधुनिक जीवन में चिंता, डर, घबराहट, झगड़ा, वर्ल्ड वॉर्स, इनसिक्योरिटी, ये सब भरी हुई है. और इस कारण से क्या हो रहा है? Charlie is unhappy, and since Charlie's brain is unhappy, it wants to escape. It wants to escape. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इन बातों को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, so I'm not repeating it again. So Charlie's mind wants to escape. Well, Charlie says, अब अगर आपको कह रहा है कि आपका दिमाग में एक प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप क्या कहेंगे? आपको अपने आप को डिफेंड करना है. So Charlie says, well, who doesn't? Everybody I know wants to escape. अरे हर कोई भागना चाहता है तकलीफों से, डर से, घबराहट से. I also want to escape. But they don't wander down into any third level at Grand Central Station. Charlie says, everybody wants to escape for that matter, but not everybody goes down discovering a third level of Grand Central Station. हर कोई तो जाकर स्टेशन पर थर्ड लेवल नहीं खोजता. तो ये बात प्रूव नहीं होती है. चार्ली कह रहा है कि ऐसा नहीं है, थर्ड लेवल है वहां पर. ठीक है, हो सकता है कि मैं एस्केप करना चाहता हूं, पर ऐसा कहना कि मैं एस्केप करना चाहता हूं इसीलिए मुझे थर्ड लेवल दिख रहा है, ये कहना गलत होगा. But that's the reason he said. But the doctor said, the psychiatrist said, no, that's the reason. तुम्हारे थर्ड लेवल खोजने के पीछे सिर्फ एक कारण है, और वो ये है कि तुम इन चिंताओं को झेल नहीं पा रहे हो. You are unhappy, you want to escape, so your mind has discovered a third level. And all my friends also agreed. मेरे सारे दोस्त भी इस बात को मान गए. Everything points to it, they claimed. My friends claimed, you're right, doctor. Everything signals or hints at the fact that Charlie suffers from waking dream wish fulfillment. क्यों? My stamp collecting, for example. Everybody said, yes, Charlie has some problem in his brain because Charlie also collects stamp, for example, and that's a temporary refuge from reality. Temporary refuge from reality. एक बार बोर्ड क्लियर करने के बाद तब तुमसे फर्दर बात आगे बढ़ाते हैं. ये हमने बोर्ड क्लियर कर लिया है, और बोर्ड क्लियर करके तुम्हारे लिए काफी जरूरी चीजें पहले से इस बोर्ड पर लिख ली हैं. अभी हम लोग क्या बात किए थे जस्ट इसके पहले?
that his psychiatrist friend said that he was unhappy, his mind wanted to escape, and this is why he was suffering from waking dream wish fulfillment, and this is why the psychiatrist thought that Charlie found the third level at Grand Central Station. Not only Charlie's psychiatrist, but Charlie's friends also believed that the psychiatrist was correct, because Charlie's behavior, his lifestyle, his behavioral patterns also showed and proved that Charlie suffered from waking dream wish fulfillment, because, and one of the markers out of those was his habit of stamp collection. एक बार इस पूरी चीजों को अभी तक की पढ़ी हुई एक बार बोर्ड पर देखकर रिलेट करते हैं. लेट अस सी. बोर्ड पर हमने लिखा है, अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट, Charlie found the third level at Grand Central Station because 1. He was unhappy. 2. Because his mind wanted to escape. And his friends believed that yes, it was correct, because Charlie's behavior also showed that he loved the past more than the present. How can we say that? Because he collected stamps. He collected stamps, and the stamp collecting habit, बच्चों यहां देखो, is a temporary refuge from reality. Refuge. What is the meaning of refuge? I have written it here for you. Shelter. Temporary refuge from reality. Reality. How is the reality? The reality is bad, because the modern world is full of, bolo, what is the modern world is full of? Insecurity, fear, war, worry, and the rest of it. So the reality is bad, grim, dull, dark. So the reality is dark. So what is his mind doing? His mind is taking a shelter. वो एक शरण ले रहा है, शरण, छुपना. उसका माइंड जाके छुपता है किस चीज में? थोड़े समय के लिए उसकी माइंड को खुशी मिलती है. क्या करने में? स्टैम्प कलेक्शन करने में. क्योंकि स्टैम्प्स क्या करते हैं? स्टैम्प्स उसको उस पुराने जमाने में ले जाते हैं जहां उसे खुशी मिले, उसे अच्छा लगे. सो स्टैम्प कलेक्शन गिव्स हिम हैप्पीनेस. ये बात क्या दिखाती है? कि चार्ली अपनी रियलिटी से दुखी है, कहीं ना कहीं उसको शेल्टर मिलता है, और यह दिखाता है कि चार्ली को पास्ट का समय अपनी प्रेजेंट रियलिटी से ज्यादा पसंद है. तो यह बात पूरी तरह प्रूव होती है कहीं ना कहीं चार्ली के साइकियाट्रिस्ट के लिए और चार्ली के दोस्तों के लिए कि चार्ली को थर्ड लेवल इसलिए दिखा है क्योंकि चार्ली का मन अनहैप्पी है और वो भागना चाहता है और वो स्टैम्प कलेक्शन भी तो करता है. लेकिन बच्चों, ऐसा चार्ली का साइकियाट्रिस्ट बिलीव करता है और ऐसा चार्ली के दोस्त बिलीव करते हैं. क्या चार्ली भी ऐसा बिलीव करता है? शायद कोई मेंटल पेशेंट ये बिलीव नहीं करता कि वो एक मेंटल पेशेंट है. उसे लगता है कि उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल है. चार्ली को देखें, चार्ली क्या है सोचता है. But that's the reason he said, and all my friends agreed, my stamp collecting, for example, that is a temporary refuge from reality. Well, maybe, Charlie says, हो सकता है भाई. But my grandfather didn't need any refuge from reality. Charlie has an argument. Charlie बोलता है, अगर स्टैम्प कलेक्टिंग करना रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है, अरे तो मेरे दादाजी भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे. मेरे दादाजी को कौन सा रियलिटी से भागने की जरूरत थी? Why did my grandfather collect stamps then? उस वक्त तो चीजें बहुत अच्छी थी, वो दुनिया तो कितनी खुश थी. Things were pretty nice and peaceful in his day from all I hear, and he started my collection. मेरे दादाजी ने मेरा कलेक्शन स्टार्ट किया था, मैं तो उन्हीं के कलेक्शन को आगे बढ़ा रहा हूं. फिर मेरे दादाजी क्यों करते थे कलेक्शन? ये चार्ली का आर्ग्यूमेंट है. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. First day covers and so on. Charlie says, मेरे दादाजी का कलेक्शन है बड़ा अच्छा. 4 स्टैम्प्स का कलेक्शन है. एक ही स्टैम्प 4, कुछ ऐसा, जैसे कह लो कि ऐसे स्टैम्प नंबर 1, स्टैम्प नंबर 2, स्टैम्प नंबर 3, स्टैम्प नंबर 4, ऐसे 4 स्टैम्प्स का कलेक्शन मेरे दादाजी का है. लगभग हर यूएस इशू जो स्टैम्प छपा था उस जमाने का
हर उस जमाने का स्टैंप उनके पास है। फर्स्ट डे कवर्स, व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर? तुमको बता दें यहीं पे, फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है बच्चों, जो स्टैंप कलेक्टर्स होते हैं वो करते क्या है, जिस दिन स्टैंप रिलीज होता है कोई नया स्टैंप, वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, एक लिफाफा खरीदते हैं और इस नए लिफाफे पर अपना एड्रेस लिखते हैं। दे पेस्ट द स्टैंप, विच स्टैंप? द न्यू स्टैंप, दिस न्यू वन। एक नया स्टैंप उस पर पेस्ट किया, अपना एड्रेस लिखा और उसको अपने ही पते पर पोस्ट कर दिया। और जैसे ही अपने ही पते पर पोस्ट किया, उस पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक मार्क लगाएगा, डेट का मार्क लगाएगा। उससे क्या छपा? तारीख छप गई, डेट, और फिर वो लिफाफा पोस्ट होकर आपके घर पहुंच जाएगा। और आप क्या करेंगे, उस लिफाफे को यूं उठाएंगे और अपने कलेक्शन में डाल देंगे। अपने आप उस लिफाफे पे आपका स्टैंप भी आ गया, उसके ऊपर डेट भी आ गई। इस तरह से स्टैंप कलेक्टर्स कभी कभी तो स्टैंप को ऐसे रखते हैं और कभी कभी फर्स्ट डे कवर यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, एंड सो ऑन। President Roosevelt collected stamps too, you know. President Roosevelt. You know who President Roosevelt was? Roosevelt was the 32nd US president. तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप, who is the present president of USA, is the 45th president of USA. 45वां प्रेसिडेंट। 32वां प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, who was the president from 1933 to 1945. So प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। अरे तो क्या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट के मरीज थे? नहीं। तो चार्ली के माइंड ने इस आर्ग्यूमेंट को तो पहले काट दिया कि ये तो कोई बात नहीं हुई, स्टैम्प कलेक्शन से आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि मुझे कोई मानसिक प्रॉब्लम है। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड स्टेशन, एट ग्रैंड सेंट्रल। चार्ली तुम्हें कहानी सुना रहा है, अपने रीडर्स से बात कर रहा है, और चार्ली कहता है चलो एनीवे पहले सुन तो लो कि मैंने थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा, सुनो तो। One night last summer I worked late at the office. One night last summer, last पिछली गर्मियों में एक देर रात तक मैं ऑफिस में काम किया। I was in a hurry to get uptown to my apartment. Uptown to my apartment. हर शहर का ना एक रेजिडेंशियल एरिया होता है और एक इंडस्ट्रियल एरिया, एक ऑफिस एरिया। Uptown मतलब that area of the city where most residential spaces are built. That's called an uptown. तो मेरा मन था कि मैं जल्दी से uptown जाऊं अपने अपार्टमेंट की तरफ। So I decided to take the subway from Grand Central. What is subway? In the last lecture I told you subway means underground railway. North America में subway का मतलब होता है underground railway. So I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. तो मैंने सोचा कि बस से ज्यादा तेज तो अंडरग्राउंड ट्रेन जाएगी, so let me take the subway. Now I don't know why this should have happened to me. मुझे नहीं पता कि अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो सबवे गया था ट्रेन पकड़ने ताकि मैं जल्दी अपटाउन चला जाऊं अपने अपार्टमेंट। अब मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old. What is Charlie's age? 31 years. So Charlie is a pretty young fellow in his 30s, just in his early 30s. So Charlie says, my name is Charlie, I am 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit. And a straw hat with a fancy band, and I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to my wife, to Louisa, my wife. Charlie says, why did I see this third level? I am like any other modern American fellow. I'm no different from anybody else. अरे मैं भी एक जस्ट किसी और अमेरिकन आदमी की तरह ही हूं भाई। मेरे में कौन सा कुछ बड़ा खास है? मैं 31 इयर्स का एक यंग मैन हूं। मैंने उस दिन किसी भी और अमेरिकन की तरह मैंने अच्छे कपड़े पहने थे। आई वॉज वेयरिंग अ, टैन मीन्स ब्राउन, बुक में नोट कर लो,
tan means brown, gabardines means high quality cotton and wool का बना हुआ coat. So I was wearing a cotton and wool mix coat of brown color. I was wearing a straw hat with a fancy band. उस hat पर एक band लगी होती है ऐसे एक रस्सी की तरह एक fancy band था. मतलब I'm like any other fashionable New Yorker. I wore a brown colored coat. I wore a fashionable hat. अरे भाई मैं जा रहा था और मेरे जैसे तो दर्जनों लोग वहां जा रहे थे. किसी को थर्ड लेवल नहीं दिखा, बस मुझे दिखा. अरे मैं किसी चीज से एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा था. मैं तो अपने ऑफिस से काम करके अपने घर जा रहा था. आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. मैं तो बल्कि चाह रहा था कि जल्दी घर जाऊं, अपनी वाइफ लुइजा से मिलूं. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. I turned into Grand Central. अच्छा, Vanderbilt Avenue क्या है? Vanderbilt Avenue is a street. एक बहुत बड़े स्टेशन पे ना, बड़े बड़े स्टेशंस पे क्या होता है? इतने बड़े स्टेशंस होते हैं कि आप एक स्टेशन पे ही 2-3 दिशाओं से पहुंच सकते हैं. ऐसा कई जगह होता है. ऐसा न्यू दिल्ली के स्टेशन पे भी होता है. आप न्यू दिल्ली स्टेशन पे 2-3 तरफ से पहुंच सकते हैं और वो बहुत दूर दूर है. आप अगर आपकी ट्रेन उस तरफ आ रही होगी और आप इस तरफ से एंटर कर गए तो आपको ट्रेन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो बड़े स्टेशंस पे ऐसा होता है कि आप इस रोड से एंटर करिए, उस रोड से एंटर करिए. ग्रैंड सेंट्रल इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी बिग स्टेशन. सो ही सेज मैं गया ग्रैंड सेंट्रल पे, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं उसमें घुसा एंड आई वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. मैं घुसा, सीढ़ी उतरा एंड आई वेंट टू द फर्स्ट लेवल where you take trains like the 20th century. Like the 20th century. बच्चों बुक में नोट करो, 20th century was an express train. 20th century was an express train जो चलती थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क से शिकागो इलिनॉयस जाती थी. वो शिकागो जाती थी, गैलेसबर्ग नहीं, शिकागो. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इस बारे में. 20th सेंचुरी एक ऐसी ट्रेन का नाम था जो बड़ी फैशनेबल ट्रेन थी उस जमाने की. ये 1902 से 1967 के बीच में रन की थी. तुम लोग को टाइम बताने का मेरा एक रीजन ये होता है कि तुम स्टोरी से रिलेट कर पाओ कि स्टोरी जिस टाइम पब्लिश हुई है, ये सारे एग्जाम्पल्स और सारी चीजें भी उसी समय की हैं. तुम ध्यान दो, 1950s में ये स्टोरी लिखी गई है, 1952, और ये देखो किस वक्त की बात चल रही है. यानी ये ट्रेन उस वक्त चलती थी. यानी ऑथर ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल उठाया है, सही नाम उठाया है. तो मैं फर्स्ट लेवल पे गया और वहां पे कौन सी ट्रेन चलती थी? 20th सेंचुरी. तो मुझे तो 20th सेंचुरी पकड़ना नहीं था, क्योंकि 20th सेंचुरी पकड़ के मुझे कोई शिकागो तो जाना नहीं है. So I walked down another flight to the second level. मैं नीचे उतरा, एक और लेवल नीचे उतरा ताकि थोड़ी स्लो ट्रेन मिल सके मुझे. सेकेंड लेवल, where the suburban trains leave from. suburban मतलब जिसे कहते हैं कस्बा, छोटा इलाका, शहर से थोड़ा दूर. तो जहां से वो ट्रेन जाती थी जो थोड़ा दूर छोटे इलाकों तक जाती हो. And then there from I ducked into an arched doorway. एक रास्ता था, एक टनल दिखा मुझे जो आर्च था. आर्च का मतलब बच्चों ऐसे, इस तरह बनी हुई चीज को आर्च कहते हैं. जैसा लंका पे रविदास गेट है, ऐसे ऊपर से. दैट्स कॉल्ड एन आर्च्ड डोरवे. तो एक आर्च डोरवे था, मैं उसमें घुसा और मैं सोचा कि मैं सबवे चला जाऊं. सबवे मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन्स की तरफ चला जाऊं. ग्रैंड सेंट्रल पे 2 ही लेवल है. मैं सोचा उधर से घुसूं और एक रास्ता पकड़ के सबवे की तरफ चला जाऊं, सो दैट आई कैन कैच माई ट्रेन विच विल टेक मी टू अपटाउन टू माई अपार्टमेंट. बट आई गॉट लॉस्ट. और मैं खो गया. मैं क्यों खो गया? बिकॉज दैट्स इजी टू डू. चार्ली सेज दैट्स इजी टू डू. आप ग्रैंड सेंट्रल पे आसानी से खो सकते हैं. आप ग्रैंड सेंट्रल पे आसानी से क्यों खो सकते हैं? क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन. तो मैं वहां घुसा और मैं खो गया.
चार्ली बोलता है कि I have been in and out of Grand Central hundreds of times. Charlie says, मैं तो बहुत बार ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर हुआ हूं, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. जैसे आप बहुत बड़े स्टेशन पे पहुंच जाइए या बहुत बड़े एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए, बहुत बड़ा एयरपोर्ट के लिए आप उसको मुंबई का एयरपोर्ट बोल सकते हैं, आप उसको चेन्नई का एयरपोर्ट बोल सकते हैं, आप उसको बेंगलुरु का एयरपोर्ट बोल सकते हैं. व्हेन यू गो टू अ लार्जर वेरी बिग एयरपोर्ट, देयर इज हाई चांस अगर आप पहली बार दूसरी बार गए हैं आप रास्ता भूल जाएंगे. यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, किस रास्ते से जाना था मुझे, यू माइट गेट लूज योर ट्रैक. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मैं जब जाता हूं हर बार मुझे कोई नया रास्ता मिल जाएगा, कोई नई सीढ़ी मिल जाएगी, कोई नया कॉरिडोर मिल जाएगा और मैं हमेशा रास्ता भूल जाता हूं. Once I got into a tunnel, चार्ली बोल रहा है, और एक बार तो ऐसा हुआ मैं एक ऐसी टनल में घुस गया ग्रैंड सेंट्रल पे which was a mile long, 1 मील लंबा टनल था. and I came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकला मैं सीधे. अच्छा, तुम्हारी जानकारी के बताएं कि यह सच है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर ऐसी टनल्स गई हुई हैं जो बहुत बार बड़ी ऑफिसेस के लॉबी में निकलती हैं सीधे, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसेस हैं वो कि वहां के न जाने कितने लोगों को सीधा स्टेशन आना है, तो रास्ता टाइम बचाने के लिए देयर आर टनल्स दैट टेक यू टू द ऑफिस स्ट्रेट अवे, देयर आर टनल्स दैट टेक यू टू अ पर्टिकुलर होटल लॉबी. आप सीधा वहां तक पहुंचते हैं. तो मैं तो कंफ्यूज हो गया. Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away. अरे एक बार तो मैं घुसा तो मैं जाके 3 रास्तों के बाद एक ऑफिस बिल्डिंग था, मैं उसके अंदर निकला. तो आज क्या हुआ? आज भी मैं सबवे पकड़ने जा रहा था, एक रास्ते में घुसा और रास्ता भूल गया. तो अब बताओ बच्चों, क्या चार्ली के हिसाब से रास्ता भूलना कोई नई बात थी? नहीं, चार्ली तो रास्ता पहले कई बार भूल चुका था. तो चार्ली को लगा कि अच्छा ठीक है, आज भी मैं रास्ता भूल गया हूंगा, और चार्ली आगे बढ़ा. चार्ली कहता है कि समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री. मुझे तो लगता है कभी कभी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री. जैसे एक बड़ा पेड़ उगता है ना, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. मुझे तो लगता है कि जैसे ग्रैंड सेंट्रल में से नए कॉरिडोर्स ऐसे निकल रहे हैं. अपनी बुक में देखो बच्चों, तुम्हारी बुक में एक पेड़ का डिजाइन बना हुआ है, पेड़ का एक स्केच. मुझे तो लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री out of which new corridors emerge and new tunnels emerge. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एक बार इस बोर्ड को क्लियर कर लें. मुझे ऐसा फील होता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बड़े विशाल पेड़ की तरह है, और वो विशाल पेड़ हर दिन अपने में से नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस निकाल रहा है. जैसे कि ऐसे कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ऐसे उसमें से नए कॉरिडोर्स ऐसे निकल रहे हैं, नए टनल्स ऐसे निकल रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है. एंड दिस इज माई ग्रैंड सेंट्रल. मुझे लगता है जैसे कि ग्रैंड सेंट्रल कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ी जगह है. चार्ली ऐसा कहता है. तो चार्ली का माइंड इमेजिन कर रहा है दैट ग्रैंड सेंट्रल इज अ ह्यूज प्लेस आउट ऑफ व्हिच न्यू कॉरिडोर्स एंड न्यू स्पेसेस आर इमर्जिंग एवरी डे. तो यहां पर आकर तो कोई भी खो सकता है, यहां पर आकर मैं भी खो गया, तो इसमें कौन सी नई बात है? और वो कहता है कि like roots, there is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. कौन जाने
कौन जाने कि ग्रैंड सेंट्रल में से एक रास्ता अभी इसी वक्त अंदर अंदर जा रहा हो बनते हुए, कोई जानता भी ना हो, और वो ले जाके सीधा मुझे किसी को टाइम्स स्क्वायर पहुंचा दे। टाइम्स स्क्वायर, व्हाट इज टाइम्स स्क्वायर? टाइम्स स्क्वायर मैनहट्टन का एक मेजर कॉमर्शियल सेंटर है। मैनहट्टन का एक मेजर बाजार, एक मेजर कॉमर्शियल सेंटर का नाम है टाइम्स स्क्वायर। तो बोलता है कौन जाने एक रास्ता जा रहा हो और कहां निकले? टाइम्स स्क्वायर पे निकले। कौन जाने एक रास्ता अभी जा रहा हो और कहां निकले? सेंट्रल पार्क पे निकले। सेंट्रल पार्क। कौन जाने कि एक रास्ता सेंट्रल पार्क पे जा रहा हो। सेंट्रल पार्क क्या है? सेंट्रल पार्क इज अ बिग पार्क इन मैनहट्टन। सो इट्स अ कॉमर्शियल सेंटर, इट्स अ पार्क। बोलता है कि कौन जाने मैनहट्टन के पार्क की तरफ एक रास्ता जा रहा है, कौन जाने इस वक्त टाइम्स स्क्वायर की तरफ रास्ता जा रहा है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। कौन जाने बहुत सारे लोग ग्रैंड सेंट्रल आते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग शायद ग्रैंड सेंट्रल पहुंचते हैं और हर रोज ग्रैंड सेंट्रल से अलग अलग दिशाओं की तरफ जाते हैं, भागते हैं। ग्रैंड सेंट्रल उन्हें हेल्प करता है अपनी अपनी दुनिया में जाने में, अपनी अपनी जगहों पे जाने में। तो ग्रैंड सेंट्रल हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जो सबको हेल्प करता है एस्केप करने में, अपनी अपनी दुनिया में। इधर जाओ, उधर जाओ, इस दुनिया, उस दुनिया। तो हो सकता है कि मुझे भी भेज दिया हो अपनी दुनिया में। और फिर हुआ क्या? मैं आगे बढ़ गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। पर मैंने एक बात बताऊं, मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट को ये सब कहानी नहीं बताई भाई, क्योंकि अगर मैं ये सब कहानी बता दूंगा उसको तो मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बिलीव करेगा दैट डेफिनेटली देयर इज सम मेंटल प्रॉब्लम। इस आदमी को पक्का कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तभी इस तरह ये इमेजिन कर रहा है। तो चार्ली बोलता है कि मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट को तो ये सब नहीं बताया, ये सब ख्याल, और मैंने बताया कि हुआ क्या था। तो बोलो बच्चों, अभी तक क्या हुआ है चार्ली के साथ? एक दिन चार्ली ऑफिस से घर जा रहा था, सबवे पकड़ना था उसको, ग्रैंड सेंट्रल में घुसा, लेवल 1 पे गया, लेवल 2 पे गया, वहां से एक आर्च्ड डोरवे में घुसा। कहां जाने के लिए? सबवे जाने के लिए, और रास्ता भूल गया। जिस कॉरिडोर में वो घुसा था, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट। थोड़ा आगे जाके वो कॉरिडोर बाएं मुड़ गया, स्लैंटेड डाउनवर्ड, थोड़ा नीचे की तरफ गया। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। मुझे लगा कि रास्ता गलत हो रहा है क्या? मुझे लगा रास्ता गलत हो रहा है, बट मैं चलता गया। आई केप्ट ऑन वॉकिंग। ऑल आई कुड हियर वाज द empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. I kept walking and I kept walking and I was alone. कोई नहीं था उस रास्ते में, एक इंसान नहीं दिखा, बस मेरे चलने की आवाज आ रही थी। Then I heard that sort of hollow roar, R-O-A-R, गर्जना, गर्जना, गरजने की आवाज। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. जैसे तुम किसी पतली गली से जा रहे हो, पतली गली से जा रहे हो, टनल में जा रहे हो, और आगे वो टनल खुल गई है और बहुत सारे लोग हैं बाहर, और बहुत सारे लोग बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं वहां पे। तो तुम्हें टनल के अंदर से ही आवाज आने लगेगी आगे लोगों की बात करने की। तो चार्ली को ऐसा लगा कि जरूर आगे जाके रास्ता खुलने वाला है। तब तक क्या हुआ? द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट। टनल बाएं मुड़ गया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। मैं बाएं मुड़ा, नीचे उतरा, सीढ़ियों से नीचे उतरा, और क्या हुआ? आई केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं थोड़ा बाएं गया, थोड़ा दाएं गया, थोड़ा नीचे उतरा, कुछ आवाजें सुना, कुछ और सीढ़ियां उतरा, और कहां पहुंच गया? I reached the 3rd level of Grand Central Station.
तो हमारा चार्ली कहां पहुंच गया बच्चों? हमारा चार्ली पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि मैं वापस सेकेंड लेवल पे तो नहीं आ गया, मैं वापस सेकेंड लेवल पर तो नहीं आ गया। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। अब यहां पे बोर्ड क्लियर करना बहुत जरूरी है, एक बार बोर्ड क्लियर कर दें। देखो, बोर्ड क्लियर करके तुम्हारे लिए बोर्ड पर हमने पहले से ये प्लानिंग कर दी है कि हम लोग नेक्स्ट क्या बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट इसके बोर्ड क्लियर करने के पहले क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे चार्ली सेकेंड लेवल से होते हुए रास्ता भूलते हुए थर्ड लेवल पे पहुंचता है। अब हमें यह जानना है कि थर्ड लेवल पर जब वो पहुंचा तो थर्ड लेवल उसको कैसा दिखाई पड़ा। वेल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट योर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन फॉर यू। हाउ डिड द थर्ड लेवल लुक लाइक टू चार्ली? इसका आंसर इस बोर्ड पर हमने तुम्हारे लिए पहले से पूरा प्लान कर दिया है। थर्ड लेवल उसको कैसा दिखा? थर्ड लेवल उसको कैसा दिखा, आओ हम लोग देखते हैं। थर्ड लेवल जब वो पहुंचा तो उसको दिखा कि वहां पे टिकट विंडोज काफी कम थी, ऊपर के लेवल्स पर टिकट विंडो ज्यादा थी। हर चीज वहां पे काफी पुरानी जमाने की दिख रही थी। लोगों के कपड़े पुराने जमानों के दिख रहे थे। वहां पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स जल रही थी। आग गैस लाइट्स, ये मॉडर्न लाइट्स नहीं, गैस लाइट्स जल रही थी। गैस लाइट्स किस जमाने की चीज थी? सम टाइम ऑफ 1800 टू 1900 के बीच की चीजें थी गैस लाइट। ओपन फ्लेम गैस लाइट जल रही थी। यानी समझो कि वो किस जमाने की बात कर रहा है या किस जमाने में चला गया है। शायद वो कुछ 1800 से 1900 के बीच में कहीं चला गया है। वहां पे जिसको पीकदान बोलते हैं या थूकने के लिए, स्पिटिंग के लिए जो हमारे रखे होते हैं बर्तन, उस जमाने में तो रईसी थी, अमीरी थी, तो कैसे स्पिटून्स रखे थे? ब्रास के बने हुए। अब कोई ब्रास का स्पिटून नहीं रखता, अब तो हो सकता है कि प्लास्टिक की चीज रखी हो। ब्रास के बने हुए स्पिटून्स थे। स्पिट मतलब थूकना, पीकदान थूकने के लिए ब्रास के स्पिटून्स रखे थे, बड़े हाई फाई। लोगों के कपड़ों का पहनावा, फैशन सेंस, लोगों की मूंछ, घड़ी का स्टाइल। लोग ऐसी घड़ी यूज नहीं कर रहे थे, लोग वो वाली घड़ी यूज कर रहे थे जो कोट में से गोल्ड वॉच ऐसे निकाल के ऐसे खोल के देखते थे पुराने जमाने में, वैसी घड़ियां यूज कर रहे थे। ऐसी मूंछ थी लोगों की, हैंडल बार मुस्टैच, बड़ी बड़ी मूंछ ऊपर की तरफ मुड़ी हुई, ऐसी मूंछ थी। जो लेडीज आ रही थी उनके कपड़ों का स्टाइल, उनके स्कर्ट्स, उनके शर्ट्स, अपर के जो शर्ट्स थे उस पे यहां पफ, वो जो ओल्ड स्टाइल पफ, ऐसे यहां पफ वाले लेडीज के कपड़े, हाई बूट्स, सब चीजें उस जमाने की, कुछ 1800 1900 के बीच के स्टाइल। सारे जेंट्स और लेडीज वैसी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे जो पास्ट डेज में इस्तेमाल किया जाता था। और फाइनली तो उसको वहां घूमते घूमते एक न्यूज़पेपर भी मिल गया। न्यूज़पेपर, जिस न्यूज़पेपर पे तारीख छपी हुई थी। क्या तारीख छपी थी? उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, और उस न्यूज़पेपर पर तारीख छपी थी जून 11 1894। जून 11 1894। यानी एकदम क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया कि चार्ली किस साल में चला गया है। ही हैज मूव्ड टू 1894। किस तारीख पे चला गया है? जून 11 1894, क्योंकि उस दिन का ये अखबार स्टेशन पे बिक रहा था। अब तो चार्ली को बिल्कुल श्योर हो गया कि वो किस जमाने में या किस समय में पहुंच गया है। आओ रीड करके देखें कि चार्ली को क्या क्या दिखा। एक बार रीड कर लिया जाए। When he reached the third level, he saw the room was smaller. बुक में देखो बच्चों, the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates.
and the information booth in the center was wood and old looking. जो बीच में इंफॉर्मेशन सेंटर था, that was made of wood and old looking. हमने लिखा है यहां हर चीजें पुराने जमाने की थी. And the man in the booth, उस इंफॉर्मेशन बूथ में जो इंसान बैठा था, you know what he was wearing, what he was using? He wore a green eye shade. Green eye shade. जानते हो उस जमाने में जब गैस लाइट्स जलती थी ना, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो जब लोग काम करते थे बैठ के, तो गैस लाइट्स की परछाई आंख पे आती थी. वो गैस लाइट्स तो तुमने कभी लालटेन जला के या अगर कैंडल जला के या डिबरी जला के बर्तन में तेल भर के और जला के अगर यूज किया है, तुम अगर बैठ के पढ़ोगे उसके पास, तो वो लाइट ऐसे ऐसे फ्लिकर करेगी, ऐसे हिलती रहेगी, और जब लाइट ऐसे हिलती रहेगी तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हें डिस्टर्बेंस होगा देखने में. तो वो लोग उस जमाने में दे यूज्ड ग्रीन आई शेड. आई शेड मतलब कुछ ऐसी चीज, जैसे ऐसे कैप लगा लो ऐसे करके. सो ये कैप क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम दिस ग्लेयर. ये जो मोमबत्ती यहां जल रही है, इसको अगर हम ऐसे लगा लेंगे तो ये कवर करेगा मेरी आंख को, तो अब मैं आराम से पढ़ पाऊंगा ऐसे करके. सो ही यूज्ड द ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. उस जमाने का ड्रेसिंग सेंस, लंबे लंबे स्लीव प्रोटेक्टर्स शर्ट की तरह पहना हुआ था. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. लाइट बड़ी हल्की थी और कुछ फ्लिकर कर रही थी. फ्लिकर मतलब लपलपाना, रोशनी का लपलपाना, ऐसे से रोशनी फ्लिकर कर रही थी. देन आई सॉ व्हाई. मैं सोचा रोशनी ऐसे फ्लिकर क्यों कर रही है, हमारी रोशनी फ्लिकर तो करती नहीं है. देन आई सॉ व्हाई. दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. अच्छा, एक नई चीज दिखी. There were brass spittoons on the floor, brass spittoons, and across the station, देखो बच्चों, बोर्ड पे लिखी चीजें और हम लोग जो बात कर रहे हैं एकदम मैच कर रही है. And across the station, a glint of light caught my eye. अचानक दूर कहीं से मेरी आंख चमकी. जैसे दूर पे कोई चीज, चमकने वाली चीज अगर ऐसे हिलेगी, तुम्हारी आंख पे रोशनी पड़ती है, कुछ ऐसे चमका. मैंने देखा कि अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. अपने पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट से सोने की घड़ी निकाला, गोल्ड वॉच, और उसने कवर को ऐसे खोला, अपनी घड़ी को देखा, फ्राउन किया. फ्राउन मतलब ये ऐसे आईब्रोज का ऐसे होना इज कॉल्ड फ्राउन. ही फ्राउंड. ही वोर अ डर्बी हैट. डर्बी हैट मतलब बोलर हैट मतलब बड़ी सी हैट, बड़ी सी. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels. तुम जानते हो lapels क्या होता है? जो कोट्स पहनते हैं हम लोग, कोट्स, जेंट्स लोग जो कोट्स पहनते हैं, और जो यहां पे ऐसे मुड़ा होता है, ऐसे फोल्ड, ये जो फोल्डेड एरिया होता है, that's called lapel. तो 4 बटन के कोट, छोटे छोटे लेपल. जानते हो कोट्स की जो स्टाइल होती है ना, वो हर जमाने में बदलती है. कुछ जमाने में लंबे लंबे लेपल्स होते थे, कुछ जमाने में छोटे लेपल्स होते थे. उस जमाने में छोटे लेपल्स होते थे, टाइनी लेपल्स, 4 बटन कोट. तो इसको देखने से भी अंदाजा लग रहा है कि ये किस जमाने में चला गया है. कुछ 1800 1900 वाले जमाने में चला गया है, with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. हैंडलबार मुस्टैश. मुस्टैश मतलब मूंछ. हैंडलबार मुस्टैश मींस लंबी लंबी मूंछ, और जो आगे जाके थोड़ा इन्वर्ट, ऊपर की तरफ मुड़ जाए, ऐसे जाकर ऐसे. दिस इज कॉल्ड हैंडलबार मुस्टैश. उस जमाने का स्टाइल. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. मुझे लगा कि सारे लोगों के कपड़े किस जमाने के दिखाई पड़ रहे हैं. सारे लोगों के कपड़े तो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं किस जमाने के, कुछ 1890s के जमाने के कपड़े मुझे दिखाई पड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा. आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स. इतने सारे लोगों की ऐसी ऐसी दाढ़ी का स्टाइल, ऐसा साइडबर्न्स. तुमने देखा होगा इंग्लिश फिल्मों में, पुराने जमाने में वो जो जेलर होते थे, उनका ये मोटा मोटा साइडबर्न्स, यहां से ऐसे, किसी का बिल्कुल ऐसे आके ऐसे साइडबर्न्स. तो ऐसे
स्टाइलिश बियर्ड, स्टाइलिश साइडबर्न, इतनी फैंसी मूंछ, मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को इस तरह का साइडबर्न्स और फैंसी मूंछ रखते हुए। तभी ये क्या हुआ, अ वुमन वॉक्ड इन, एक औरत अंदर आई। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव। लेग ऑफ मटन स्लीव मतलब क्या हुआ, लेग ऑफ मटन स्लीव का मतलब वही हुआ वो जो पफ वाला डिजाइन, जो यहां पे टाइट स्लीव, लेकिन लेडीज के वो कपड़े जिसमें यहां पे ऐसे ऐसे पफ बना होता है यहां पे। सो वो पफ वाला पहने हुए वो आई। शी वॉज वेयरिंग स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, लंबे लंबे बूट्स, बटन्स लगे हुए, उसके ऊपर स्कर्ट, ऐसे वाला शर्ट। सारे कपड़े किस जमाने के, 1890s के जमाने के। बैक ऑन ऑफ हर, तब तक पीछे मुझे क्या दिखा, मुझे पीछे दिखा, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। मुझे एक ट्रेन का एक ट्रेन का इंजन दिखाई पड़ा। A very small Currier and Eves locomotive. Currier and Eves locomotive. Currier and Eves locomotive with a funnel-shaped stack. Funnel-shaped stack. उस जमाने की ट्रेन्स के ऊपर वो जो ऐसे निकला होता था धुआं निकलने के लिए, funnel-shaped stack. बच्चों एक और रेफरेंस तुम्हारे लिए आ गया अभी अभी। क्या रेफरेंस आया है, यहां लिखने जा रहे हैं हम। Currier and Eves locomotive, Currier and Eves locomotive, उसको दिखा। ये रेफरेंस जानते हो क्या है, Currier and Eves कंपनी का लोकोमोटिव दिखा उसको। Currier and Eves कंपनी एक प्रिंट मेकिंग कंपनी थी यूएसए की। प्रिंट मेकिंग, छापती थी वो, कागज छापती थी, प्रिंट मेकिंग थी। और वो जानते हो क्या कब किस एज में थी वो थी 1835 से लेकर 1907 के बीच में ये कंपनी काम करती थी। 1835 से 1907। अब जरा सोचो भाई, अगर वो एक ऐसी कंपनी की ट्रेन देख रहा है, का वो लोकोमोटिव देख रहा है जो कंपनी ही 1835 से 1907 के बीच में थी, फिर थी ही नहीं, खत्म हो गई वो कंपनी, तो वो किस जमाने में होगा? अरे वो इसी टाइम के बीच में तो होगा, 1835 से 1907, इसके बाद तो हो नहीं सकता। सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि वो कहां पहुंच गया है, कुछ 1800 से 1900 के बीच में कहीं पहुंचा हुआ है। और तब तक और क्या हुआ, एंड देन आई सॉ एंड देन आई न्यू, और मैं समझ गया, अरे Currier and Eves लोकोमोटिव दिख रही है, मतलब मैं जरूर कुछ उस जमाने में पहुंच गया हूं, कुछ 1890s के टाइम में पहुंच गया हूं। टू मेक श्योर, मैंने सोचा आखिर मुझे श्योर तो होना ही पड़ेगा। सो आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। एक न्यूज बॉय, एक लड़का अखबार बेच रहा था, मैं उसके पास गया, उसके पैरों के पास देखा। इट वॉज द वर्ल्ड। कौन सा अखबार बिक रहा था? द वर्ल्ड। कौन सा अखबार बिक रहा था? द वर्ल्ड अखबार बिक रहा था। और द वर्ल्ड अखबार तो सालों से छपा ही नहीं है। अब इस न्यूयॉर्क में तो द वर्ल्ड नाम का अखबार मिलता ही नहीं है, क्योंकि द वर्ल्ड नाम का अखबार भी किस समय से किस समय तक चला था? 1860 से 1931 के बीच में ही ये न्यूज़पेपर छपता था, फिर छपता ही नहीं था। ये देखो, 1835 से 1907, 1860 से 1931, सारी वो चीजें जो इसी पीरियड में थी और फिर खत्म हो गई। उसको द वर्ल्ड अखबार दिखा, और द वर्ल्ड तो तब से कई सालों से छपा ही नहीं है। और पता है उस वर्ल्ड अखबार में क्या छपा था? उस वर्ल्ड अखबार में उस दिन का हेडलाइंस था अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपा था। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपा था। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड कहां लिखा जाए? इधर लिखते हैं, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड यूएस के 24th प्रेसिडेंट थे, और इनका जो प्रेसिडेंट बनने का टाइम था वो था 1893 से 1897।
अरे भाई, अगर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का कोई न्यूज छपा था तो अब तो और पक्का हो गया कि वो किस समय का अखबार किस दिन का अखबार रहा होगा। कुछ 1893 से 1897 के बीच का अखबार रहा होगा, क्योंकि हेडलाइंस ही प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था। उसने देखा कि प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का न्यूज छपा था, और जो क्या तारीख थी, एंड आई फाउंड इट सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। ये देखो, 1893 से 1897 के बीच का अखबार था वो, और उस दिन की तारीख क्या थी? जून 11, 1894। और उस दिन उस अखबार पे तारीख छपी थी जून 11, 1894। यानी हम लोग एकदम श्योर हो गए, चार्ली भी एकदम श्योर हो गया कि वो कहां पहुंच गया है। वो पहुंच गया है एक ऐसी तारीख, जून 11, 1894 की तारीख में पहुंच गया है। कहां? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे पहुंच गया है। और चार्ली के लिए ये कोई सपना नहीं है। चार्ली ने पूरा वेरीफाई किया है, देख देख कर वेरीफाई किया हर चीज को, और तुम्हारे सामने सबूतों की लाइन लगा दी कि वो सच में वहां गया था। उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, और बिल्कुल लॉजिकल, हर चीज कितनी लॉजिकल है। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे चार्ली 100% वहां गया होगा, कोई शक इसमें नहीं है। तो चार्ली ने हमको यह विश्वास दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि वो 3rd लेवल पे जरूर गया था। इस स्टोरी को इसी पॉइंट पे यहां रोकते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अपने लेक्चर नंबर 3 में, आज लेक्चर नंबर 2 है, यहीं से इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को एंड भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।